हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 24। इसमें आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अमृत तुल्य होगा। इसमें जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी हैव डिस्कशन मोस्ट important chapter here, industrial development. There is a most important chapter here. An important topic arrive here, brief history of modern industry. You know that brief history of modern industries here. The modern industry development in the India is started with their establishment of the first cotton textile mill at the Mumbai in 1854. Predominantly is with the Indian is a capital and entrepreneurship is here, and jute industry made a beginning in 1855. 1855 there is a most important period time here, and with the establishment of the jute mill in Hooghly Valley near Kolkata with the foreign capital and entrepreneurship here. And the coal mines was first started in the Rani Guns in the 1772. Is a railways where is introduced in 1854. Tata Iron Steel Plant was set up at Jamshedpur in the 1907, and several other mediums and a small size industry like cement, glass, soap, chemical, jutes and sugar and paper flowed here. The industrial production is the pre-independent period was the neither acquired nor is diversified. There is the most important point here. At the time of independence, the economical was under development with the agriculture contributing to more than 60% of the GDP, and most of the country has a sport or earnings. After 60 years of independence, India has now shown the sign of the becoming a leading economical power here. There is a more important here increasing of GDP on this time. Industrial development in the India can be divided into two phases. The government successfully is increasing its control over a different economical sector, and during the first phase is a 1947 to 1980. In the second phase, is a 1980 is a 97 is a measuring to be liberalized. The economical between the 1980 to 1992. This measuring were somewhat arose in the after 1992. The whole process of liberalization become a more focused and radically different in a nature. After the independence, systematic industrial planning under different 5-year plan helped in establishing a large number of heavy and medium industries here. The main thrust of the industrial policy was to be remove original imbalance and to be introduced a diversification of industries. Indogenesis is a capability where it is developed to be achieve a self-sufficiency, and it is due to this effort that India has been able to develop in the field of industry.
Today we have export a large number of industrial goods to various countries here. यहाँ जो चैप्टर आया है अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास। देखिए औद्योगिक विकास कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर औद्योगिक विकास किसी भी देश में ना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी हुई रहती है। कुछ इसी प्रकार के जो है इस चैप्टर के अंतर्गत भी हम करेंगे, जहाँ पर औद्योगिक विकास के विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके हर एक पहलू के विषय में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं औद्योगिक विकास न हो तो कोई भी देश की जो है सुचारू रूप से विकास नहीं हो सकता। और भारत इवन जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और इसमें औद्योगिक का विकास होना एक बहुत बड़ी लक्ष्य थी और इन लक्ष्य को जो है पूरा भी किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग गया। तो यही बात हम जानेंगे कि आखिर ये समय कैसे लगा और कितने साल में जो है भारत जो है आधुनिकीकरण के और आगे अग्रसर हुआ, यानी जो है औद्योगिक विकास किस प्रकार हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट यही आता है, आधुनिक उद्योग का संक्षिप्त इतिहास, यानी आधुनिक उद्योगों का संक्षिप्त इतिहास क्या है। तो भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना जो कि 1854 से हुआ था। कहते 1854 से जो औद्योगिक स्थापना हुआ पहला सूती कपड़े की मिल थी। ये देखिए यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जो है हमारे आधुनिक औद्योगिक विकास कहाँ से शुरू हुआ। तो कहते हैं सबसे पहला जो है मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में। और इस कारखाने की स्थापना ने भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन ही मुख्य था। कहते हैं जूट उद्योग का आरंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ। ठीक है, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जूट उद्योग का आरंभ कहाँ से हुआ। 1855 में जब कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना की गई, जिसमें पूंजी एवं प्रबंधन नियंत्रण दोनों ही विदेशी थे। यानी देखा जाए तो इंडिया के ये जो मिल नहीं थी, ये विदेशी मिल थी, यानी विदेशों वालों ने इसको यहाँ पर स्थापना किया। लेकिन स्थापना तो हुई। कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरू हुआ। तो देखिए इसकी शुभारंभ जो है कोयला खनन उद्योग का जो है सर्वप्रथम जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरुआती हुई। प्रथम रेलगाड़ी का आरंभ जो था 1854 में हुआ। अब देखिए रेलगाड़ी का आरंभ कब हुआ? 1854 जब जो सूती कपड़े की मिल की स्थापना हुई, उसी समय के दौरान जो 1854 में रेलगाड़ी की भी स्थापना हुई। कहते हैं टाटा लोहा इस्पात कारखाना जो है जमशेदपुर झारखंड राज्य में है और 1907 में स्थापित किया गया। यानी टाटा लोहा इस्पात की कारखाना जो जमशेदपुर में झारखंड में है 1907 में स्थापित हुआ। और इसके बाद कई मझले तथा छोटे औद्योगिक इकाई जैसे सीमेंट, कागज, साबुन, रसायन, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी उसके बाद एक होड़ सी लग गई कारखानों की स्थापना में, जिसमें सीमेंट हो, कांच हो, साबुन हो, रसायन हो, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि सारे उद्योग को जो है स्थापना किया गया। स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक उत्पादन न तो पर्याप्त थे और न ही उसमें विभिन्नता थी, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्रता के जो है पूर्व और स्वतंत्रता के बाद कहते हैं भारत में कुछ भी नहीं था। कहते हैं भारत को बिल्कुल खोखला सा हो गया था और इसमें बहुत ही जो है समस्याओं का सामना करना पड़ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, बिल्कुल ही अविकसित थी, जहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक था। यानी देखा जाए तो कृषि इस समय प्राथमिक थी और 60% से अधिक जो है अपना जीडीपी में योगदान दे रही थी। देश के अधिकांश न्यास से आय कृषि से ही थी। यानी देखा जाए तो जो भी हमें मिलती थी वो कृषि से ही प्राप्त होती थी, हमारे पास कोई भी उद्योग अच्छा नहीं था। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भारत ने अब अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के संकेत दिए हैं। अब देखा जाए तो भारत कुछ जो है आगे बढ़ के दिखाया है और जो है पूरे संसार में अपने आप को आगे स्थापित भी करने के लिए अग्रसर हुआ है। भारत में औद्योगिक विकास के 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। भारत के अगर प्रथम चरण की बात करें तो कहते हैं 1947 से 80 के दौरान लिया जाता है। यानी 1947 से 80 के जो समय काल थी वो प्रथम दौर थी, जहां पर जो है इसको विकास के दौर को रूप देखा गया। कहते हैं इसके दौरान सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ा दिया। यानी जो है 1947 से 80 के दौरान सरकार ने बहुत ही नियंत्रण किया और आर्थिक क्षेत्र पर जो है अपनी कर्मियों को बढ़ा दिया। द्वितीय चरण जो था 1980 से 97 में विभिन्न जो है
उपायों द्वारा जो है 1980 से 92 के बीच में जो है अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया। कहते हैं उदारीकरण लाने से काफ़ी कुछ बदलाव आया। और उदारीकरण का अर्थ आप जानते ही होंगे कि जो उदारीकरण है, जो व्यापार होता है उसमें छूट दे देना, टैक्सों पे छूट देना, यही उसके उदारीकरण कहलाता है। यानी बहुत चीज़ों को जो है सरकार ने फ्री कर दिया, बहुत सारे कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया, उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके कारण जो है काफ़ी जो है अर्थव्यवस्था आगे पटरी पे आ खड़ी हुई। इन उपायों का उदारीकरण तत्कालिक एवं अस्थायी रूप से ये किया गया था। अंततः 1992 के पश्चात उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया तथा उपगामों की प्रकृति में मौलिक विभिन्नता भी लाई गई। तो कहते हैं सरकार की इस नीति ने जो है बहुत से कंपनियों को जो है भारत की तरफ देखने पे मजबूर कर दिया और भारत की संपदाओं की तरफ जो है काफ़ी आकर्षित भी किया, और इस प्रकार जो है भारत कुछ डेवलपमेंट की राह पे चल पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक योजनाओं के जो है समाहित करते हुए कार्यान्वित किया गया, और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में भारी और मध्यम प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देश के औद्योगिक विकास नीति में अधिक ध्यान देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन को हटाने में केंद्रित किया गया था, और विविधता को भी स्थान दिया गया था। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि देश के औद्योगिक विकास नीतियों में अधिक ध्यान देना जरूरी था, और जो असमानता व असंतुलित थी उसको हटाने में केंद्र ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भर के प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता को प्रोत्साहित कर विकसित भी किया गया। यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय लोगों को काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया गया, और जो है विकसित राष्ट्र बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं सब प्रयासों के कारण भारत आज जो है विनिर्माण के क्षेत्र में विकास कर पाया है, और आज हम बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात विभिन्न देशों को करते हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहते हैं अगर हम यही अचीवमेंट हासिल आने वाला समय में और भी बढ़ा दें तो हो सकता है कि भारत जो है प्रथम नंबर पे आ जाए औद्योगिक विकास में। लेकिन कहते हैं ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, लेकिन होना कोई बड़ी बात नहीं है। The next is a classification of industry. There is an important point here, a classification of industries. Industry can be classified on different bases, and classification of industry on the basis of 5 criteria has been given to following table. There is important here classification. There are different bases here. The here table is the most important. A classification of industries is a source of raw material. First criteria here, source of raw material and types of industry and main character and example. There is a first year source of raw material. There is a two types here, types of industries, agro-based industries and mineral-based industries. And the main characteristics here, agriculture, product and use of raw materials. And second here, a mineral are used as a raw material. Example, cotton textile, jutes, sugar and paper industries. And secondly here, iron, steel, chemical and cement industries. The next here, ownership. Here the sector here, public sector, private sector, joint sector and cooperative sector. There is here open and managed by the government. The private sector here, urban and management by industries or group of company. And the joint sector is owned joint by public and private sector, and cooperative sector is owned by the cooperative society and raw materials producer. And the example here, public sector is a Bakro, iron, steel and plant, Chatan, Ranj and the locomotives work here. And the next year, private sector, Tata, iron, steel, JK cement industry, Polo tires and other. And joint sector here, a Maruti Udyog. And cooperative sector here, a sugar industry and Maharashtra, Amul Gujarat and Ifuko is a Kerala. There is most important here. The next here, function of the role, there is a two here, basic industries and consumer good industry. The basic industry is a finished product of basic industry are used as raw materials for other industries. And consumer good industries here, finished product of this industry are directly used in by individually. But the first year basic industry example here, iron, steel and petrochemical industry. And second here, consumer good industry here, toothpaste, soap and sugar industries. And the next year, size of industry. Size of industry is the first year, large scale industries is a who investment heavy machinery, large number of workers
and large factories of 24-hour operation. And the example here, iron, steel, oil is the refiners. So here a part of the large scale of industries of second part here, small scale industries and rural and cottage industries. There is the small scale industries here, a small investor, small factory, few factor workers, and the rural and cottage industries owned by family member and a small machines and home. And the example here, small scale industry, cycle, electrical goods and industries here. And the rural and cottage industries example here, jewelry, handicraft is handlooms, arts, work, and there is important. And the fifth year, bait of raw materials and finishing product here. There is a two to have here, heavy industries and light industries. There are heavy industry of both raw materials and finished product are heavy and work high transport cost. And light industries is important here. Both raw material and finishing product are the high in the weight and low transport cost here. The heavy industry example here, iron, steel, and BHEL hardware and heavy electric like a generator. And light industries here, example, watches and ready-made garment, toys, fountain pen. That is important. This is not necessary for the any particular industry to be included only in one category. Depending upon the classification, the same industry can become an example of different types of industry. For example, Bokaro Iron Steel Plant is a minerals-based industries. It is a public sector. It is a basic industry. It is a large-scale industry and also an example of a heavy industries here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग का वर्गीकरण। देखिए औद्योगिक का वर्गीकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। हम जब तक उद्योगों को जो है डिफरेंट पार्ट में नहीं रखेंगे, हम उसके बारे में जो है पूरी प्रमुखता से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर उद्योगों का जो है वर्गीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं विभिन्न जो है लक्षणों के आधार पर उद्योगों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु इसको जो है सिर्फ 5 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, देखिए उद्योग का वर्गीकरण, ये टेबल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप आधार देख सकते हो, उद्योग का प्रकार, प्रमुख विशेषता और उदाहरण। तो कहते हैं सबसे पहले तो आता है जो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कई रूप में बदले गए हैं, जिसमें पहला जो है कृषि आधारित उद्योग और इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें कृषि उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग करना स्वाभाविक बनाता है। और उदाहरण के रूप में देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूती वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, चीनी सकड़ा उद्योग एवं कागज उद्योग। कच्चे माल के उद्योग के अंतर्गत दूसरा जो है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें जो है इसका विशेषता यही है कि खनिज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करना और इसका अच्छा उदाहरण है लौह और इस्पात, रसायन एवं सीमेंट उद्योग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी अपनी अवेयरनेस, स्वयं स्वामित्व। इसके जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता यही है कि स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन सरकार द्वारा होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक है तो इसका नियंत्रण कौन करता है? सरकार। निजी क्षेत्र जो है स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कंपनियों के रूप में होती है, यानी इस पर नियंत्रण एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है, एक कंपनी के द्वारा भी हो सकता है। और संयुक्त मतलब जान ही गए होंगे ज्वाइंट, इसमें संयुक्त रूप से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही स्वामी होते हैं, यानी सार्वजनिक भी होते हैं और निजी भी इसके स्वामी होते हैं। सहकारी क्षेत्र देखा जाए तो कच्चे माल के उत्पादों के द्वारा सहकारी समिति बनकर स्थापित उद्योग है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो बोकारो में लोहे एवं इस्पात संयंत्र जो है चितरंजन कोलोमोटिव्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें टाटा लोहा एवं इस्पात संयंत्र, जेके सीमेंट, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ओपोलो टायर्स भी इसके अंतर्गत आता है। अगर हम संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो मारुति उद्योग इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। सहकारी क्षेत्र की अगर बात उठाएं तो कहते हैं महासागर के चीनी उद्योग जो है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल्य गुजरात के और इफोरो कैदला के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है।
उसके पश्चात आता है प्रमुख कार्य अथवा योगदान के आधार पर, जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। आधारभूत उद्योग की बात करें, विशेषता की बात करें तो ये साफ करता है कि आधारभूत उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के दूसरे अन्य उत्पादों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग करना हमें बताता है। ठीक है। और जो उपभोक्ता उद्योग है, इन उद्योगों द्वारा जो निर्मित उद्योग को सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाना। अब देखिए आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल क्या होगा, लौह और इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग आ जाता है। अगर हम उपभोग उद्योग की बात करें तो टूथपेस्ट, साबुन, चीनी उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि चौथी पॉइंट की बात करें जिसमें उद्योग के आकार के आधार पर वर्णित होता है, तो उसको तीन भागों में बांटा गया है। बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बात हम करें बड़े पैमाने का उद्योग, जिसमें अधिक जो है पूंजी निवेश, भारी मशीनरी, कारीगर की अधिक संख्या, विशाल संयंत्र 24 घंटे अविरत कार्य करते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग जो है कम पूंजी निवेश, छोटे स्तर के संयंत्र, कारीगर एवं कार्यशील मजदूरों की थोड़ी संख्या। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो परिवार के सदस्य का स्वामित्व, छोटे मशीन जिन पर घर पर ही कार्य किया जा सकता है वो आती है। अगर बड़े पैमानों के उद्योग का अगर हम उदाहरण देखें तो लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधक यंत्र इसके अंतर्गत आता है। और छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो साइकिल उद्योग, बिजली सामान बनाने वाले उद्योग आते हैं। और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो आभूषण निर्माण, हस्तशिल्प, दस्तकारी, कलात्मक वस्तुएं सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। उसके पश्चात पांचवा पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कच्चे माल तथा तैयार माल के भार के आधार पर, जिसको भारी उद्योग के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके अंदर कच्चे माल एवं विनिर्मित माल दोनों भार, भरकम तथा आकार में बड़े परिवहन की काफ़ी लागत होती है, ये इसकी विशेषता है। अगर भारी उद्योग के एग्जाम्पल की बात करें तो लौह एवं इस्पात, भारी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार जनरेटर जैसे जारी बिजली उत्पाद काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और इसका दूसरा पॉइंट तो यही आता है हल्के उद्योग, यानी इसके अंतर्गत जो इसकी विशेषता दर्शाएगी वो कच्चे माल तथा उत्पाद दोनों वजन में जो है हल्के परिवहन में कम लागत के अंतर्गत आता है। अगर हल्के उद्योग के एग्जाम्पल की बात करें तो घड़ियाँ, सीले, स्याही, वस्त्र निर्माण, खिलौने, फाउंडेशन पेन उद्योग सारे इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं ये आवश्यक नहीं है कोई एक उद्योग एक ही श्रेणी में शामिल होते हो, वर्गीकरण के आधार पर एक ही उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योग का उदाहरण भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण के तौर पर बोकारो लौह इस्पात संयंत्र खनिज आधारित उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का भी उद्योग है तथा ये आधारभूत उद्योग है। ये बड़े पैमाने पर उद्योग तथा भारी उद्योग का ही उदाहरण है। देखिए इस बात को आप जनरली समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमने 5 वर्गीकृत किया तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये जो है उसी चीज़ पे आधारित हो, ये कई और चीज़ पे भी आधारित हो सकती है। ठीक है, यानी अगर एक उद्योग जैसे यहाँ पर हल्के उद्योग कच्चे माल उत्पादन दोनों वजह हल्के परिवहन के लिए होता है, जरूरत नहीं है कि यह गाड़ियाँ ही ये बनाती हो या फाउंडेशन पेन ही बनाती हो, ऐसे बहुत सारे उद्योग और भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक जनरली बात समझने की कोशिश किया, जो समझना था हमें कि हमें किस प्रकार के उद्योग है, कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जनरली एक प्रकाश थी समझने के लिए इंडस्ट्रीज़ के बारे में, किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ जो है होते हैं और इनको इस प्रकार बांटे गए हैं और इसका कार्य प्रणाली इस प्रकार है और इसके उदाहरण और इसकी विशेषता ऐसे दर्शाई गई है। तो ये सिर्फ बात समझने के लिए थी। ठीक है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जरूरी भी थी और समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और आपको नहीं भूलना है, वो ये नहीं भूलना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए ये कार्य आप करना, क्योंकि जरूर नहीं करोगे तो दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को नहीं पहुंच पाएगा और तिरपान सेंटर जो है, जो इसका उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगर आप तिरपान सेंटर से जुड़े हुए हो तो जरूर ऐसा कार्य अवश्य करो। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसे सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर सारे वीडियो जो है एक लाइन से आपको नजर आएगा। साथ में तिरपान सेंटर ने आपके लिए जो है प्ले लिस्ट का भी प्रावधान कर दिया है, जहाँ पर सारे जो है वीडियो सिलेबस के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंतर्गत और चैप्टर के अंतर्गत आपको नज़र आ जाएगा। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है।